Good morning, students. Welcome. Students, today we are going to cover the remaining part of the chapter number 3, and in the last video we had learnt about kinds of noun. The name of the chapter is noun, and in the last video what we had read about kinds of noun. How many kinds of nouns are there? There are 5 kinds of noun. Let's name them. Let's list them. Common noun, proper noun, collective noun, abstract noun and material noun. Common difference between common and proper noun is proper noun includes the name of particular person, name of particular person, particular place, mountain, river. Like just I am saying Haridwar, it is a name of city. Gwalior, it is a name of city. Country, like country, what I am saying India, China. These are the names of countries. Name of any person like Mohan, Sham, Rohan. Name of any person like Priyanka and Monica, like this, it comes under proper noun. But on the other hand, if I am just saying country, city, mountain, river, but I am not naming them, I am just speaking about mountain, river, but I am not speaking any particular, saying any particular name. So these comes under common noun. Like city simply I am writing और country I am writing, ये किस में आते हैं? ये कॉमन नाउन में आते हैं. नाउ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन ऑफ समथिंग. उस कलेक्शन को क्या बोला जाता है? लाइक सोल्जर के कलेक्शन को क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ कीज को क्या बोला जाता है? कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स या ग्रुप ऑफ ग्रेप्स को क्या बोला जाता है? लाइक कीज के ग्रुप को बोला जाता है बंच, सोल्जर्स के ग्रुप को बोला जाता है रेजिमेंट. यही सब हमको क्या बताता है? रेजिमेंट, बंच, ये सब क्या है? ये है कलेक्टिव नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज नाउन्स विच वी कांट सी और टच बट वी कैन फील इट. जिसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते. ये आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. मटीरियल नाउन comprises of those nouns, for example the material from which anything is made. कोई भी चीज़ बनी है जिस मटेरियल से, उसे बोला जाता है मटेरियल नाउन. जैसे कि इस लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने मटेरियल नाउन के अंदर एक एग्जांपल पढ़ा था. चेयर लिखा था, चेयर इज़ मेड अप ऑफ वुड. चेयर किसकी बनी है? वुड की, लकड़ी की. तो लकड़ी की बनी है मीन्स वुड क्या हो गया यहाँ पे? वुड हो गया मटीरियल नाउन. जिसकी बनी रहती है जिस चीज़ की, उसको बोला जाता है मटीरियल नाउन. दैट्स इट. ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू? टुडे वी आर गोइंग टू डू द वर्किंग जोन ऑफ दिस चैप्टर. नाउ द ए एक्सरसाइज ऑफ वर्किंग जोन. फर्स्ट ऑफ ऑल see that in the clue box various these examples are given which we have to put, various words are given which we have to put in the fill in the blanks followed below. फर्स्ट वन, एल्बर्ट आइंस्टाइन इज़ द नेम ऑफ अ. एल्बर्ट आइंस्टाइन किसका नेम है? साइंटिस्ट का नेम है. देखिए ऊपर लिखा है साइंटिस्ट इधर. सेकंड, कुरान इज़ द नेम ऑफ होली बुक. होली बुक लिखा है यहाँ पे. यूनियन जैक इज़ द नेम ऑफ. यूनियन जैक क्या है? यूनियन जैक एक फ्लैग है. फोर्थ, सेंट पॉल्स कैथेड्रल क्या है? एक चर्च का नाम है. तो लिखेंगे इज़ द नेम ऑफ अ चर्च, रिटन ओवर हेयर. नेपोलियन इज़ द नेम ऑफ. नेपोलियन किसका नाम है? डिक्टेटर का, एक शासक का. मीन्स जो डिक्टेट करते हैं, अपना राज चलाते हैं, उसको बोलते हैं डिक्टेटर. पेरिस, पेरिस किसका नाम है? एक सिटी का नाम है. एशिया किसका नाम है? कॉन्टिनेंट का नाम है, इज़ द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट. एट्थ वन, क्रिसमस इज़ द नेम ऑफ. क्रिसमस किसका नाम है? फेस्टिवल का नाम है. नेक्स्ट फ्यू, ninth, Sachin Tendulkar is the name of cricketer. Sanchi Stupa is the name of monument. Australia is the name of country. Monday is the name of day of week. Tiger Woods is the name of golfer. And last one, January is the name of month. All these you have to do by yourself. In the clue box all the words are written over here. You just have to have a proper look at them and then try to fill all the blanks given below. But you don't have to cheat. Once you complete the whole work, check it by, again you can play the video and check it. Now the next one, exercise B, matching.
Here a few collective nouns are given in the column A. We have to match them with the words given in column B. फर्स्ट वन बंडल ऑफ. बंडल किस चीज़ का होगा? बंडल होता है स्टिक्स का. लिखा हुआ है स्टिक्स बी ब्लॉक में, बी कॉलम में. सेकेंड रेजिमेंट किसका होता है? सोल्जर्स का होता है. फ्लाइट ऑफ लोकस्ट. देन नेक्स्ट shoal of fish. Nursery of plants. Just a second. Shoal of fish fourth one है. Nursery of plants is fifth one. Then a quiverful of arrows, and the last one League of Nation. ओके, यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो दैट कहीं भी फिलअप आ सकता है. लाइक डैश ऑफ स्टिक्स का क्या होता है? बंडल होता है, या फिर बंडल ऑफ डैश, बंडल ऑफ स्टिक्स. नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स. अपोजिट्स लिखने हैं हमको. जो ये सी एक्सरसाइज दी है यहाँ पे क्या लिखने हैं हमको? अपोजिट. इन द क्लू बॉक्स ऑल द ऑप्शंस आर गिवन. We just have to read the options, and the given numbering is written over here. Like cruelty, the first one. Which will be the correct answer to cruelty? It is kindness. First one is given over here, kindness. Second, grief. Answer of grief, opposite of grief will be joy. Grief मतलब दुखी होना, और joy means happy. Sickness, बीमार, the opposite is health. Fourth, bravery. ब्रेवरी मीन्स जो बोल्ड होते हैं, काफ़ी ब्रेव होते हैं. अपोजिट इज कावर्डाइज. कावर्डाइज मीन्स डरपोक. फिफ्थ, लव. लव मीन्स प्यार, एंड अपोजिट विल बी नफरत, दैट इज हेट्रेड. सिक्स्थ, इग्नोरेंस. आंसर इज इंटेलिजेंस. सेवेंथ, हम्बलनेस. आंसर विल बी प्राइड. सी इट इज ओवर है. एट्थ इज disobedience. आंसर विल बी अपोजिट, दैट इज obedience. Ninth, absence. Answer will be presence. 10th, gentleness. Answer is harshness. 11th, poverty means गरीबी, means उसका opposite क्या होगा? अमीरी, that is wealth. 12th one, stupidity means बेवकूफ़. Opposite will be cleverness, means चालाकी. 13th, dishonesty. Opposite will be honesty. 4th, hardness. Opposite is softness. 15th, youth means जो young लोग होते हैं, youth. Opposite is aged. 16th, failure. Opposite is success. Do this exercise also by yourself, students. You have to learn all the opposites without the help of clue box. You have to learn all the opposite. clue box से लर्न मत करिएगा. क्लू बॉक्स की मदद से आप आंसर लिख सकते हैं खुद से, बट लर्न करना है बिना क्लू बॉक्स के. नेक्स्ट, एक्सरसाइज डी. इट इज़ रिटन ओवर है एक्सरसाइज डी. सी एक्सरसाइज के नीचे ही लिखी है. टिक द करेक्ट ऑप्शन है. इसमें हमको क्या करना है? जो हाईलाइटेड वर्ड है, जैसे हीट, लाइट एंड एनर्जी दिया हाईलाइटेड वर्ड फर्स्ट वाले में, इसका हमको नाउन बताना है कि कौन सा नाउन है. देखिए, टाइप ऑफ कॉलर्ड वर्ड्स नाउन्स बताने हैं. तो हीट, लाइट एंड एनर्जी को हम टच नहीं कर सकते हैं. देन क्या हो है, ये वाला कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सेकेंड, बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. बिल गेट्स नेम है किसी पर्सन का, पर्टिकुलर पर्सन का नेम है जिसने कौन है बिल गेट्स? क्या है? प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट, थर्ड वन, रेल कोचेस एंड इंजन्स आर मेड ऑफ स्टील. स्टील हाईलाइटेड है. स्टील क्या है? रेल कोच और इंजन स्टील के बने होते हैं, मतलब मटेरियल के बने रहते हैं, तो मटेरियल नाउन है स्टील. ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर. द ब्यूटी क्या है? ब्यूटी को हम टच नहीं कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. फिफ्थ वन, क्रू इज अ ग्रुप ऑफ सेलर्स वर्किंग ऑन अ शिप. सेलर्स के ग्रुप को क्रू बोला जाता है, तो क्रू क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ सक्सेस. ऑनेस्टी को टच नहीं किया जा सकता, देयरफॉर इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सेवेंथ वन, लास्ट वन, वर्च्यू इज नॉट लास्ट वन, द सेवेंथ वन, वर्च्यू इज गॉड्स गिफ्ट टू दिस वर्ल्ड.
वर्च्यू को भी टच नहीं किया जा सकता, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छे से सारे आंसर्स देख लीजिए, समझिए और खुद से एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट वन, 8th, वन, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग के एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग के एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को बोलते हैं स्ट्रेंथ। 9th, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ फियरफुल। फियरफुल के बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को क्या? फियर, मतलब डर। और 8th वाले का क्या मतलब था? ताकत। 10th वन, अ डैश ऑफ बीज। बीज के कलेक्शन को बोलते हैं स्वॉर्म। व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ बीज कॉल्ड? स्वॉर्म। आंसर ऑफ 10th वन इज स्वॉर्म। 11th, डैश ऑफ कॉन्स्टलेशन। ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोला जाता है कॉन्स्टलेशंस। एंड 12th वन, डैश ऑफ जजेस। जजेस के ग्रुप को बोला जाता है पैनल। जजेस के कलेक्शन को बोला जाता है पैनल। सो स्टूडेंट्स, here we have completed the chapter number 3. Thank you.